Hello guys, this is Sunita. Welcome to your class. Today we are going to do our poem, The Voice of the Rain. This is the name of our poem and it is written by Walt Whiteman. So let us start the poem. Actually, in this poem, this is completely based on like the author is just here. It is based on complete imagination. Okay, in first line only, the writer is introducing the imaginary uh, figure of speech. The poetic devices have been used here, okay, and personification has been used also, but basically the imaginary has been used here, and this poem is basically based on the imagination of the poet. The poet is imagining that he is talking to the rain and the rain is answering him. So let us start the poem. And who art thou? Thou means you. That the poet is asking the rain that whose art are you? Okay, that tum kiski kala ho? Who has just made you? Who has just created you? Said I to the soft falling shower. Shower means the raindrops. I just asked the soft falling shower, soft falling raindrops. Soft falling means the drops were just falling very softly. Which strange to tell you. And after that, I was very strange, means I was very wondered. Something strange happened. And what is strange to tell you? That gave me an answer. Who gave me the answer? That the raindrops gave me an answer, as here translated. Okay, these two lines are said by the poet. Okay, and rest of the poem has been said by this is the translation of what the rain said to the poet. ये जो नीचे की जो लाइंस हैं, ये पोइट ने हमारे लिए, अकॉर्डिंग टू पोइट, कि पोइट ने हमारे लिए ट्रांसलेशन किया है कि जब उसकी रेन से बात हुई तो रेन ने क्या बोला, उसको पोइट ने नीचे ट्रांसलेट किया है. ओके, एंड दीज टू लाइंस उसने पोइट ने हमको इंट्रोडक्शन दिया है. दैट मैंने एक बार रेन को पूछा कि तुम किसकी आर्ट हो, और रेन ने मुझे जवाब दिया. वो बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए, एंड दैट्स वाई आई हैव ट्रांसलेटेड इट फॉर यू. I am the poem of earth. And who am I? I am the poem of the अर्थ. ओके, दैट मैं कौन हूँ? मैं तो अर्थ की जो है ना वो पोम हूँ. एंड हियर द मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर हैज़ बीन यूज्ड हियर. दैट दैट वॉइस हैज़ बीन कंपेयर्ड. जो बारिश के गिरने की आवाज़ है उसको किस चीज़ से कंपेयर किया गया है? उसको अर्थ की पोम बोला गया है. यू नो, इफ़ यू डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन द मेटाफर एंड सिमली, सिमली यूज ऑलवेज लाइक, ऑफ कोर्स इन बोथ वी कंपेयर. ओके, हम दोनों ही फिगर्स ऑफ स्पीच में कंपैरिजन करते हैं, और सिमली में हम लाइक और एज यूज़ करते हैं. बट हियर इन केस ऑफ मेटाफर वी डोंट यूज़ लाइक और एज, वी डायरेक्ट कंपेयर, वी जस्ट डायरेक्ट ब्लेम. ओके, सेड द वॉइस ऑफ द रेन. Eternal I rise, impalpable out of the land and the bottomless sea. Now, impalpable means untouchable. Eternal means everlasting. I rise out from the land. मैं धरती से, और धरती और बॉटमलेस सी मतलब ऐसा समुद्र जिसकी कोई तलछटी नहीं है. मैं धरती और बिना तली के समुद्र से, बिल्कुल बिना किसी के टच किए हुए, मुझे कोई टच ही नहीं कर सकता, मैं ऐसे राइज होती हूँ. सी हियर हाइपरबोल हैज़ बीन यूज्ड. बॉटमलेस सी मतलब ऐसा सी जिसके कोई बॉटम ही नहीं है. जो बॉटम ही नहीं है तो पानी कहाँ रहेगा? सो दिस इज़ हाइपरबोल. मीन्स जो इफ़ेक्ट वो जो पॉइंट देना चाहता था, उस इफ़ेक्ट को देने के लिए उसने हाइपरबोल यूज़ किया है. हाइपरबोल, इफ़ यू डोंट नो दिस हाइपरबोल, देन सी हाइपरबोल हिंदी में समझ के देख लो इसको. हाई मतलब ऊंचा, पर बोल मतलब ऊंचा बोलो. मीन्स जो चीज़ें हैं उनको एक्चुअल में ना कह के हम क्या है, हम उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के जब कह देते हैं तो सी कैन नॉट बी अ बॉटमलेस. ओके, दैट्स वाई हमने यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के जो है ना उसको बोल दिया है राइटर ने, पोइट ने. दैट्स वाई दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोल. Upward to heaven. Okay, and after just rising from the land and the bottomless sea, I just move to heaven. I just move to heaven. And whence, from where vaguely formed, and from where, then
I vaguely means unclearly, very unclearly. I am formed all together, changed and yet the same. Now see, अब समुंदर से, बॉटमलेस सी से ड्रॉप कैसे निकलती है, वहाँ से इवेपोराइजेशन होता है, इवेपोराइजेशन होके वो ऊपर जाती है, क्लाउड्स में जाती है. अब वो वहाँ से इवेपोराइजेशन होकर ऊपर जाती है तो क्या है, वो ठंडा हो जाता है. एंड दिस इज चेंज्ड इनटू वाटर. अब ये जो इवेपोराइजेशन होके यहाँ से ऊपर गया था तो ये कूल होके और ये वाटर में चेंज हो जाता है. द बेसिक द केमिकल फार्मूला इज सेम, वो चेंज भी हो जाती है लेकिन वो फिर भी सेम ही रहती है, जो चाहे स्टीम हो और या फिर वाटर हो. ओके, वो चीज़ भी एक ही है, सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है. तो ये कहना चाहता है कि वो चेंज भी हो गई है बट वो सेम भी है. ओके, I descend to leave the drought. I descend to leave the droughts, atomies. ओके, एंड मैं फिर क्या है, मैं नीचे उतरती हूँ, मैं ऊपर चली जाती हूँ ठंडी होके और मैं वहाँ पे जो है ना वाटर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हूँ. फिर क्या है, मैं नीचे उतरती हूँ, किसकी फॉर्म में, मैं बारिश की फॉर्म में नीचे उतरती हूँ. और मैं क्या करती हूँ, जो ज़मीन पड़ी हुई होती है, जो ड्राउट्स जहाँ पे आ गए हैं, जो एटॉमिक्स, जो धरती के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जो डस्ट लेयर हो गए आ गई हैं, छा गई हैं यहाँ पे ग्लोब के ऊपर, मतलब अर्थ के ऊपर जो डस्ट लेयर्स हैं. एंड आई वॉश ऑल दोज थिंग्स. लेव मीन्स क्वेंच द थर्स्ट. आई क्वेंच द थर्स्ट ऑफ ऑल दोज थिंग्स, means the living bodies, every particle of the earth. धरती के एक एक पार्टिकल की जो प्यास है वो मैं ही बुझाती हूँ. ओके, एंड all that in them without me were seeds only. Okay, and what do? I just quench the thirst of each and every particle of the earth, and all that in them without me were seeds only. We just saw the seeds in the earth. Okay, and if we do not water the seed, there is a seed in the earth. And whenever there is a rainy season, or whenever we just pour some water in it, then only it becomes a plant, and then it grow and it becomes a tree. Without water in the earth, it is a seed, and without water it will remain a seed only. And this is the same thing द पोइट वॉन्ट्स टू से, दैट रेन क्या कह रही है कि मेरे बिना अगर मैं ना हूँ ज़मीन पे तो मेरे बिना ये जो ज़मीन में सीड है, जो बीज है, वो बीज ही रहता है. ओनली लेटेंट अनबॉर्न लेजी सा बना रहता है, अनबॉर्न इनएक्टिव रहता है. एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक टू माई लाइफ. एंड आफ्टर दैट क्या है, मैं जब बारिश की फॉर्म में आती हूँ नीचे तो मैं क्या ज़मीन पे भी जाती हूँ. ज़मीन पे जब मैं जाती हूँ तो मुझे ज़मीन सोख लेती है. ओके, बट जब मैं वाटर में गिरती हूँ तो क्या है, मैं वाटर का लेवल बढ़ा देती हूँ. और उसके बाद फिर से जब सन निकलता है तो सन से वेपोराइजेशन होकर मैं फिर से वापस आ जाती हूँ. तो आफ्टर डूइंग माई ऑल द जॉब्स, आफ्टर फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन. और उसके बाद मैं खुद को अपनी लाइफ दे देती हूँ. ऑरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट. मैं क्या करती हूँ, मैं जो है ना पैदा होती हूँ और फिर मैं क्या करती हूँ, मैं ब्यूटिफाई करती हूँ चीज़ों को, सीड को मैं प्लांट में ही बनाती हूँ, चीज़ों को ब्यूटिफाई करती हूँ और क्लियर करती हूँ, प्योर करती हूँ. एंड आफ्टर दैट अगेन आई जस्ट कम टू माई ओरिजिनल शेप. Okay, and here these two lines up to here, this is from the third line of the poem up to here, these all wordings are said by the poem in words of the poet. The poet has translated for us, but these two lines have been said by the poet only. Means here the voice of the rain, this is not the voice of the rain. Here this is these are the poet's own thoughts. So for song issuing from its birthplace, after fulfillment wandering, reckoned or unreckoned, duly with love returns. Okay, now this the same thing happens with the songs and with the poetry. Okay, it originates from the
birthplace. What is the birthplace of the of any of the song or any of the poetry? It's always heart. It originates from the heart. Okay, and then it gives the pleasure to the other hearts, it gives the pleasure to the other people, and they then come back to the हार्ट अगेन. हार्ट से निकले थे और हार्ट तक आ गए हैं. सो जहाँ से ओरिजिनेट हुए थे वहाँ पे वापस आ गए हैं. ओके, एंड दे ड्यूली वेदर दे आर रेकन्ड और अनरेकन्ड, वेदर दे आर गिवन द क्रेडिट और नॉट क्रेडिट, whether somebody just give attention or not attention, do not give attention, then in the both the cases they duly with love returns. वो क्या है, प्यार के साथ ही अपने ओरिजिन पर वापस आते हैं. So this is the whole poem. I hope you have understood it, and if you feel any problem then you can write down in the comment box. Thank you. Have a nice day.